mothering conference. And I know like aaj ka, like considering ke aaj Pakistan mein kya ho raha hai, people would be like, okay, why are we discussing mothering? But I feel that it's really important to always keep in mind that there are certain topics which remain important regardless of what's happening in the country. And one of the biggest one to me is the wellness of mothers, because everything stems from that. And mothers remain the most ignored, the most neglected part. So while what's happening in the city has upset all of us, we need to continue to push ourselves to focus on what's important for us as women, for us as mothers. So I'm really glad that we have a fantastic panel with us today for day 3 of the Digital Mothering Conference. This is the second time we're doing it. We did one last year. And this is like my favorite thing to do at Scary Yummy, get the best experts from around the country together to educate mothers, to talk about issues that affect mothers, and hopefully to make it something that is so viral that every mother ends up having the knowledge and the expertise and the help that she needs. So let me quickly introduce the panel, and then we can go on to taking your questions. We have with us Uzma Rehman, who is a spiritual healer and Reiki master, and we can talk to her about what spiritual healing is, because I think a lot of us still don't know what it is. Then we have Asma Masood. She's done sessions on Scary Yummy before. Also, she is a nutritionist and a dietitian, and she's excellent at what she does. We have Dr. Aiza Yazdani, jo abhi D Chalk se wapas aayi hai. So she is, besides being a psychologist, she's also very active PTI member. She was just telling us, like she lives in Islamabad. She's just come back from the Azadi March to come and talk to all of you about this. And then we have with us Amna Muazzam, who is head of Department of Psychology at the Lahore College of Women University. And then one person, Dr. Faiza Irfan, who is a family physician, will be joining us shortly. She's having some internet issues. So thank you so much, everybody, for joining us. It's so great to have all of you here. And Uzma, I want to start with you first. So, the postpartum phase, like when a woman becomes a mom, and like she's in that, like the 40 days or the 2 months in which she's most vulnerable, at which the chances of her going into postpartum depression are so high. Like I recently gave birth about 5 months ago, and I went into really, really bad like postpartum depression, bordering on psychosis. What can women do at that time in terms of spiritual healing to heal themselves? You can control your mind with your breath. You can change your vibration with your breath. You can raise your to our vibration, right? जब हमारी वाइब्रेशन जो है ऑल स्ट्रेस्ड अप होगी तो क्या होगा, वी कन्वे ओनली स्ट्रेस, राइट? आपने देखा होगा कभी कभी कमरे में कोई आता है, उसको देख के दिल खुश हो जाता है, वो कुछ बात भी नहीं करेगा, उसकी एनर्जी इतनी अच्छी होगी. इसी तरह कभी कमरे में कोई आएगा और उसको देख के मेरा दिल मुरझा जाएगा, है ना, वो बात भी नहीं करेगा क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा वो होती है. तो यू कैन cleanse when you are stressed up, when your vibration is all stressed up, you convey only stress. And when you cleanse your vibration through your meditation and your breath work, आपकी vibration जो है वो भी peaceful हो जाती है और calm हो जाती है. ठीक है, तो आप अपनी वाइब्रेशन को, अपनी एनर्जी को अपने ब्रेथ के साथ कंट्रोल कर सकते हो. आपने सुना होगा, यू हर्ड अ टर्म प्राणा और ची, राइट? प्राणा जो है इट्स अ संस्कृत वर्ड, इट मींस लाइफ फोर्स एनर्जी. जब हमारी बॉडी के अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी कम होती है तो क्या होता है, वी फील नेगेटिव, वी फील डिप्रेस. उस टाइम के ऊपर यही होता है कि हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी जो है वो नीचे चली जाती है, एंड वी फील लेजी, लेथार्जिक, डिप्रेस, नेगेटिव, कुछ भी अच्छा नहीं लगता. और वही हमारी जब एनर्जी और प्राणा जो है बॉडी के अंदर ऊपर जाता है तो यू फील हैप्पी, यू फील रिलैक्स, यू फील पॉजिटिव, और हमारा माइंड बहुत सी नेगेटिव चीजों को लेट गो कर देता है. एंड इस टाइम पे यही तो होता है कि हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी नीचे चली जाती है, और वही लोग, वही सिचुएशन जो हमें बॉदर नहीं कर रहे होते, उस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा बॉदर करना शुरू होता है और हमारा बस दिल करता है मार दे या मर जाए, ये वाली सिचुएशन आ जाती है. सो प्राणा जो है
जब वो हमारी बॉडी के अंदर ऊपर जाता है तो हमारा लाइफ, हमारी जो माइंड है, हमारी लाइफ की नेगेटिव चीजों को बहुत आसानी के साथ लेट गो कर देता है, एंड यू फील हैप्पी, यू फील रिलैक्स, यू फील पॉजिटिव. एंड देयर आर 4 मेन सोर्सेज ऑफ प्राणा, यानी कि उस एनर्जी को ऊपर लाने के हमारे 4 मेन सोर्सेज हैं. योर फूड, योर स्लीप ऑफ कोर्स, योर ब्रेथ, एंड योर पॉजिटिव काम एंड हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड. अब ब्रेथ की सब लोगों में ये क्वेश्चन आता है कि भाई सांस तो हम हर वक्त ले रहे हैं, क्या मतलब है ब्रेथ का? वो कौन सा ऐसा ब्रेथ है जो कि हमारे माइंड को पीसफुल कर सकता है या हमें पीसफुल कर सकता है? तो उसके लिए सबसे पहले हमें ना ब्रेथ को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रेथ है क्या. अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया है? जिन्हों को बनाया आग से, फरिश्तों को बनाया नूर से. हमने इतनी क्या बड़ी बात थी कि हमें मिट्टी से बना के अशरफुल मखलूकात का दर्जा दे दिया, क्योंकि जब हमें खुदा ने मिट्टी से बनाया तो उसमें हमारे में अपना सौरभ का, हमारे में खुदा की दी हुई सलाहियत है, हमारे में खुदा की दी हुई ताकत है. इसलिए तो कहते हैं कि वो हमारी शारक से भी करीब है. इस दुनिया में आते हैं पहला काम सांस, ऐसे ही है ना, और इस दुनिया से जाते हैं आखिरी काम सांस. सो फ्रॉम दिस ब्रेथ टू दैट ब्रेथ, इन बिटवीन एवरीथिंग वी कॉल लाइफ. अब सांस ये तो एक स्पिरिचुअल इसका वो हो गया. साइंस भी इस चीज को वो करती है कि 70 to 80% ऑफ योर टॉक्सिन एंड इम्प्योरिटीज जो है आपकी बॉडी के, वो आपके सांस के जरिए रिलीज होते हैं. और एक आम इंसान अपनी ब्रेथ का, सांस लंग्स कैपेसिटी का सिर्फ 20-30% यूज करता है. तो अब दिमाग में ये ख्याल आता है कि भाई मेरा तो रिलेशनशिप का इशू है, वो सांस से कैसे ठीक होगा? मुझे जो डिप्रेशन हो रहा है, मेरा तो काम का इशू है, वो कैसे ठीक होगा? मेरा तो हेल्थ का इशू है, वो सांस से कैसे ठीक होगा? मेरा पैसों का इशू है, मेरा जॉब का इशू है, वो सांस से कैसे ठीक होगा? तो हमारे सारे इमोशंस जो है ना, वो हमारे सांस के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं. जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा सांस तेज हो जाता है, राइट? हम जब परेशान होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो क्या होता है? हमारा सांस छोटा हो जाता है. इसको आसान लफ्जों में अगर देखें तो आयशा, जब व्हेन यू आर इन लव, जब हम खुश होते हैं, जब हम मोहब्बत में होते हैं, तो हमारे चेहरे पे आ जाता है, सबको पता चल जाता है कि यार खुश हो, क्या हुआ है? आंखों में चमक, चेहरा खिल जाता है. एंड व्हेन यू आर सैड एंड व्हेन यू आर डिप्रेस, सबसे पहले क्या होता है? हमारा चेहरा उतर जाता है, आंखों के नीचे हल्के बढ़ जाते हैं. जब आप डिप्रेशन में, तो सबको पता चल जाता है क्या हुआ है, ठीक हो, क्या हुआ है. तो बेसिकली वो क्या होता है? वो हमारी बॉडी का सिस्टम है, क्योंकि हमारे इमोशंस हमारे सांस के साथ जुड़े हुए हैं. व्हेन यू आर हैप्पी, आपका ऑटोमेटिकली गहरा लंबा सांस हो जाता है, और उससे आपका चेहरा, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जा रही है ना, प्राणा अंदर जा रहा है, लाइफ फोर्स अंदर जा रही है, चेहरा खिल जाता है. और जब हम डिप्रेशन में हैं तो चेहरा मुरझा जाता है. तो सारे हमारे इमोशन हमारे सांस के साथ जुड़े हुए. इफ योर माइंड इज अ काइट ना, तो उस काइट को जो उड़ाने की डोर है ना, वो है आपका सांस. माइंड को आप कंट्रोल कर सकते हो विद योर ब्रेथ. और वी ऑल आर सिटिंग ऑन अ ओशन ऑफ एनर्जी, बट पता ही नहीं है. पूरे दिन में एक सांस है जिसको हम कहते हैं सुख का सांस, और सांस का पता ही नहीं है. ले रहे हैं, लेकिन कोई अंदाजा ही नहीं है. So by manipulating the breathing, you can change, and उससे पहले कि by learning to work with your breath, you can change your mind, you can control your mind, you can control your emotion, you can control your thoughts, you can control your feelings, and by manipulating the breathing, you can change your emotions. और अगर हमने अपने emotions change कर लिए तो क्या होगा? We can change our inner self. तो सारी जो चीजें हैं ना, वो ख्याल से शुरू होती हैं. उस टाइम पे जब बच्चे की प्रेगनेंसी, उसके बाद 40 डेज, और वो जो सारा टाइम होता है, उसमें क्या चीज होती है? ख्याल. ख्याल हमें जो है ना कि क्या होगा, क्या हुआ था, ये हो रहा है, ख्याल, हमारा माइंड ही हमें इतना घुमाता है. तो ख्यालों पे काबू पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि थॉट लीड्स टू एक्शन, एक्शन लीड्स टू हैबिट, हैबिट लीड्स टू कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर लीड्स टू डेस्टिनी. Of course, destiny is there, लेकिन we all make choices. Free will भी है ना. Life is the combination of destiny and free will. जैसे आयशा, आपकी height is your destiny, but हमारा weight हमारी choice है. इसी तरह आपने कभी देखा होगा कि बारिश है, बारिश is destiny, but उस बारिश में हमने भीगना है या नहीं भीगना, वो हमारी choice है. तो आपने कभी हाथी को बचपन में देखा होगा, एक 7-8 टन का हाथी, अगर आप सर्कस पे गए हो, एक छोटी सी चेन के साथ बंधा होता है.
तो बेसिकली वो हाथी उस चेन के साथ नहीं बंधा हुआ होता, उस ख्याल से बंधा होता है कि मैं इस चेन से निकल नहीं सकता, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ऐसी हुई होती है। तो हम भी अपने आप को बहुत से ऐसे ख्यालात से बांध लेते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, बट ट्रस्ट मी, सब कुछ हो सकता है। सांस के जरिए यू कैन चेंज एवरीथिंग। मैंने अपनी जिंदगी बदली अपने सांस के जरिए। यू नो, एक टाइम था व्हेन आई एक्चुअली हिट माय रॉक बॉटम, यू नो, बिल्कुल ही। और उस वक्त आई हैड इंसोम्निया, आई हैड बुलिमिया, I was taking a lot of medication, antidepressant. In fact, I was suicidal. और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। सांस के जरिए मैंने अपनी जिंदगी को बदला, और इस तरह से हर कोई बदल सकता है। यू नो, हम हर कोई अपने ब्रेथ के साथ काम करके, सारी क्या बात है कि आपकी, हम इससे हमारी नर्व इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि सारी अच्छी चीजें, अच्छी बातें जो हमें पता होती हैं बट हम अपने पे अप्लाई नहीं कर सकते, उनको हम बहुत आसानी के साथ अपने पे अप्लाई कर सकते हैं। यू नो, जैसे होता है कि किसी की बात की टेंशन ना लो, कोई हमारे सर पे डंडा तो नहीं मारता ना कि डंडा मारा खून निकल आया है। तो बेसिकली वो हमारा माइंड है जो उन चीजों को इतना बड़ा बना के पेश करता है। माइंड बॉडी पे, मैटर पे रूल करता है। अगर हमने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो हर चीज अपनी कंट्रोल कर ली। सो आई थिंक शायद मैं यहीं पे यही बताने के लिए सिर्फ आई हूँ कि वन चॉइस कैन चेंज द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और अगर आपके पास टाइम होगा तो हम एक ब्रेथ भी कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाउ powerful a breath can be. For sure. No, for sure. We'll definitely come back to you and like do the breathing. So Abhi, you were talking about prana and you said that, you know, you can like enhance your prana through breath, and then you said through food and sleep, and one more thing you said, positive energy. So since you spoke about food, I wanted to ask Asma. So Asma, what role, if any, does food play in the mood of a mother, or like, you know, the postpartum period, jab aapke hormones and just physically? I mean, I remember in my postpartum period when I was going through postpartum depression, I didn't want to eat at all, but I know other women who wanted to eat a lot. So role kya hai food ka, and are there certain foods jinse aapka mood behtar ho sakta hai, which can act as natural antidepressants? एक्चुअली आयशा, आपने बात की कि पोस्टपार्टम वो टाइम है जब मदर बनती है, लेकिन आई बिलीव कि मदर तब से बन जाती है जब वो कंसीव करती है। मैं आपसे अपने एक लाइफ का एक वाकया शेयर करूंगी। जब मैं न्यूबी मदर थी फर्स्ट टाइम, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप कैसा फील कर रहे हैं ना। तब एट दैट टाइम आई वाज प्रेग्नेंट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो वो कहते हैं, यार मैं क्या फील करूंगा, जब वो पैदा होगी मैं उसको महसूस करूंगा, उससे इंटरेक्ट करूंगा तभी मैं। लेकिन मैं फिर अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा किया कि मैं तो अभी से, जब से मैंने उसे कंसीव किया तब से ही मैं मदर बन गई थी। मैं फील कर रही थी कि वो क्या कर रही है, क्या खाएगी, मैं खुद अच्छा खाऊं तो वो भी अच्छा खाए। तो जरूरी ये है कि हमारी गवर्नमेंट को ऐसे इकदाम लेने चाहिए कि जब औरत जो है वो कंसीव करके डॉक्टर्स के पास थे, तब से उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए कि आपने प्रेगनेंसी में क्या डाइट लेनी है, आपने लैक्टेशन में क्या डाइट लेनी है, और 2 इयर्स तक आपने अपने बेबी को कैसे जो है वो आपने उसकी डाइट में कैसे आपका इफेक्ट होना चाहिए। और जैसे कि उस्मा ने कहा कि हाइट इज योर डेस्टिनी, बट इट्स नॉट ट्रू एनी मोर। अगर आप चाइना की हेल्थ सर्विस देखें तो उन्होंने अपनी कंट्री की एवरेज हाइट उन्होंने इंक्रीज कर दी है। एंड वाई? बिकॉज उन्होंने 1000 डेज, जो फर्स्ट 1000 डेज मदर और चाइल्ड के हैं, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। वो कब से स्टार्ट होती है? कि जब मदर कंसीव करती है, और कंसीव से लेके 2 इयर्स तक। और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर इस दौरान मदर की डाइट अच्छी है, आपके बच्चे की डाइट अच्छी है, तो वो अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर सकता है हाइट का। बेशक उसमें जो है, एक्चुअली जो हाइट होती है वो एक सॉर्ट ऑफ बटन्स होते हैं, और अगर आपने राइट टाइम पे, राइट मोमेंट पे वो बटन्स आपने प्रेस किए तो आपका बच्चा जो है वो फुल पोटेंशियल हाइट को गेन कर लेता है। अब हम अगर अपने पाकिस्तान की सिचुएशन देखें तो आपको पता है कि मोर देन 50% ऑफ द चाइल्ड बियरिंग वुमेन आर एनेमिक, ऑलरेडी एनेमिक। अच्छा, होता ये है कि छोटी एज में शादियां हो जाती हैं, और जो है ना आपको पता नहीं होता, आप प्लान नहीं करते और प्रेग्नेंट हो जाते हो। अब ऑलरेडी एक मदर अंडर नरिश्ड है, फिर उसके बाद उसके जो प्रेगनेंसी में उसकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो जाती हैं। बच्चे ने तो अपनी एक्सट्रैक्ट करनी है,
वो और malnourished होती है। और फाइनली जब वो मदर बनती है और लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है, जो कि 2 years तक उसने ब्रेस्ट फीड करवाना है, उसमें और उसकी कैलोरीज डाउन होती हैं। तो अब आप ये देखें, अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं 6 माह पे हमारे बाल गिरने शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बॉडी को प्रिपेयर ही नहीं किया। ठीक है। अब अगर आपने बात की कि कैसी डाइट लेनी चाहिए लैक्टेटिंग मदर्स को, तो उसमें आप देखें जो एक नॉर्मल आपकी डाइट रूटीन है उससे 500 किलो कैलोरीज आपको एडिशनल लेनी चाहिए। और ट्रिक यही है, फूड ग्रुप्स डिवाइड करें। ठीक है, आपने फूड ग्रुप्स डिवाइड करने हैं, आपने वेजिटेबल पोर्शन, फ्रूट्स पोर्शन, अपना प्रोटीन। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने जो है वो प्रोटीन एंड कैल्शियम, देखिए आपने मिल्क प्रोड्यूस करना है। ठीक है, और इसके अलावा जो पोस्टपार्टम में आपकी बॉडी में जितनी भी डेफिशिएंसीज हुई हैं, आपने उनको भी ओवरकम करके नॉर्मल न्यूट्रिएंट स्टेटस पे आना है। तो इसलिए आपका प्रोटीन पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज प्रोटीन, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड मिल्क ग्रुप, मिल्क एंड फैट ग्रुप। अब उसमें भी आप जो है वो अपने पास डायरी मेंटेन कर लें अपनी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क है, तो मिल्क की सर्विंग्स होती हैं, आपने डेली 3 कप्स ऑफ मिल्क आपने लेने ही लेना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 3 ग्लास दूध के पिए, नहीं। आप उसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। आप मिल्क प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, योगर्ट ले लें। अक्सर ये होता है, मुझे भी ये फील हुआ था कि जब मैं लैक्टेट करवाती थी तो मुझे नॉजिया और वॉमिटिंग फील होती थी। तो उसमें ये है कि आपने छोटे छोटे स्नैक्स लेते रहना है। ठीक है, एक टाइम पे आप जो है वो मील, एक हैवी मील मत लें, बल्कि फ्रीक्वेंटली 6 मील्स में अपने फूड को आप डिवाइड कर लें। इसी तरह से प्रोटीन के मैंने पोर्शंस आपको बताए, तो प्रोटीन के आपको 6 to 7 पोर्शंस लेने ही लेने हैं। अब प्रोटीन ग्रुप में आप उसमें मीट ले सकते हैं। अब बहुत से लोगों का ख्याल है, मैं अभी एक कंपनी के लिए कंसल्टेंसी कर रही हूँ लेकिन और आसमा, उनको ये जो सारे मील ग्रुप्स हैं, लाइक मतलब इफ यू हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट, डज दैट एलिवेट योर मूड? डज दैट, मतलब एक तो होता है ना बैलेंस डाइट आप इसलिए कर रहे हो कि भाई वजन ना गेन हो, but what about a balanced diet and wellness, balanced diet and mood? उसमें क्या इम्पैक्ट है? देखिए, आप देखें जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो एक डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है आपकी ब्रेन। जब आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, आपने बैलेंस्ड, आपको ग्लूकोज नहीं मिल रहा, आपकी बॉडी को कार्ब्स नहीं मिल रहे, तो आपका ब्रेन जाहिर बात है लो एनर्जी फील करेगा। ठीक है, फिर आपसे जाहिर बात है आफ्टर बेबी आपके बर्डन आप पे डबल हो जाता है, वो आजादी नहीं रहती। तो जब आप लो एनर्जी में जाओगे तो आपका मूड भी खराब होगा। इसलिए बहुत Yeah. जरूरी है कि आप बैलेंस डाइट लो, ताकि आपकी खुद की एनर्जी जो है वो कंप्लीट हो और आप आगे उसको, बेबी को भी नर्चर कर सको। Okay, great. So taking this point forward, Dr. Aiza, Abhi, like, you know, Uzma was talking about the role of breath when it comes to the wellness of a mother. मतलब I'm sure जो ये बातें हो रही हैं ये women in general पे भी apply करती हैं, लेकिन we are talking about the most vulnerable part of a woman's journey, which is the postpartum period. So Uzma spoke about the importance of breath. Asma spoke about the importance of diet. As a psychologist, I'm sure आप बहुत सी औरतों को देखती होंगी who are going through anxiety or depression or panic attacks. Like I was talking to a general physician उस दिन, and he's like, you know, every other woman who's coming to me with gastric issues like gastritis हो गया या ulcers has a psychological issue which has gone undiagnosed, and वो stress की वजह से उन्हें ulcers हो रहे हैं. So in your opinion, what is the most important mistake these women are making? Is it their breath? Is it their diet? Is it their sleep? Is it a positive attitude? या is it something else जो ये गलती हो रही है जिसकी वजह से मतलब so many women are ending up on medications जैसे उस्मा कह रही थी, या with physical problems जैसे this doctor was telling me? I think it's everything, Aisha. It's like we can't pinpoint any one thing, and I'm glad we are having this discussion here, because postpartum is a very sensitive time, and I would just like to walk you through the whole process. In our culture, becoming a mother is the ultimate destination of every female child. Marriage and motherhood. So from day one, a girl child is so much brought up to be so much fixated on that ultimate goal, that, and then she must be perfect.
She must take care of everybody. So what we have created actually here in Pakistan and the subcontinent is basically a picture of perfection where mother can do no wrong, and we guilt trip the mother like anything. So she has to be, it's an emotional trap. You have to be there for your child, you have to be there for your husband, you have to be there for the in-laws. You are like Atlas, you are carrying the world on your shoulders. Okay. So what happens by the time the baby is born, she's so exhausted. She has gone through 9 months. Probably she has gone through them alone, the checkups, maybe there are multiple pregnancies. Then of course, nutrition. Women really don't care about their nutrition. There's no concept of healthy diet. It's a junk food concept. I know mothers who are gorging on burgers and pizzas and whatnot. When they actually need fresh fruits and vegetables and stuff like that. So by the time, her internal resources are depleting, her psychological resources are depleting. She's trying to keep everybody happy. And going through the delivery and all that. And then, now you take care of the baby. And then it's just, if she's lucky enough, she's with her parents or somebody. But I think that usually happens in the first one. By the third, fourth, fifth, you are on your own. Like, ab to sab kuch pata hai. Ab to sab kuch pata hai na? And then you can't pack up and leave with the kids and everything. Na? Things are very much changed. And then the whole thing just keeps tumbling down. And there's no emotional support for her. And I think one of the worst things that we have done to ourselves, I'm an EMDR therapist, and when the pandemic started, and then we really focused on this thing, and like Uzma said, we do a lot of breath work in that. It's developing your, regulating your system. So there's a lot of breathe in and breathe out, and then understanding our own body and our own triggers. So we go back, we step back, and we understand our triggers, and then we work with ourselves. But what is happening? We are just a walking time bomb. We don't understand our triggers. We are just loaded with so much body shame, so much stress. Beta hai to beti nahi hai, beti hai to beta kyun nahi hai? I had 3 sons and I was told you should have a daughter. So where does it end? Wali baat hai. So, it never ends. I have 5 kids. Uspe bhi logon ka masla hai. Why do you have 5 kids? Why didn't you think about the population? I'm like, does it ever end? Those who don't have a kid, unke piche bhi. Those who have boys. Uzma, you have 3 boys. Do a lot of people tell you, why do you not have a girl? हाँ बस होता है तो मेरे अब माशाल्लाह बहू है आगे तो वो बेटी है. Yeah. So basically that's what's happening. Then it's all piling up. And if during these times, if the mother has not been developing her resources, she has not been taking care of herself, and she's always been out there for others, then either postpartum happens, I think, ya to continuously hota hai. I don't know with you, but with your last pregnancy, if it happened, why did it happen? Your hormonal level was down. Something or the other triggers it, right? So we need to see case by case basis, or just see what the general pattern is. But basically, at some point, the woman can't cope. And if we develop, if we focus on a good, healthy diet over generations, then the mother is stronger, the baby is stronger. But we are not focusing on the mental well-being of women by and large. I hope that answers your question. Yes, absolutely. So far we've discussed breath and nutrition, and I think what Aiza was talking about was like support from the society, which, and support from the husband and the mom and everything. And if that's present, it helps put the woman in a positive direction. And if it's absent, I think it escalates depression. So, Dr. Amna, I want to ask you, since you're a psychologist, when it comes to depression, there is this idea, like even my mom, even though she's a physician, was like, you have so much to be grateful to. Why can't you pull yourself out of it? And I'm like, mashallah, like a very privileged girl, but I know that this is something that hurts everybody who's going through it, because somehow people around us seem to think, bhai,
why can't you be strong? Why can't you just pull yourself out of it? What is it with depression and anxiety and these mental disorders that makes it impossible? Like, is it really a case of being strong and weak? And by aap khud, matlab, like, you know, my mom would be like, namazein zyada padho. And of course that helps, but is it possible even for a woman to just come out of it herself? Or is it just not possible? Like, what really happens, and why is there this notion in society ki bas become strong? Well, first, I would like to directly give the answer to your question. Then we'll be coming back to many things which were coming in your mind since we have started talking about this. I think when we talk about that someone being strong, like आप strong हैं तो फिर आप ठीक हो सकते हैं, या आपको strong जरूर होना चाहिए, या grateful जरूर होना चाहिए. Ideally, these things seems to be 100% correct. But when we talk about taking any corrective action, when you are in a painful situation, तो हमारी जो emptiness है, जो हमारे उस वक्त लातादाद emotions जहन में एक jumble up हो रहे हैं, जो extreme mood changes हैं, sadness की feeling है, exhaustion है, एक बिल्कुल helplessness है उस वक्त, और ना आपको अपना बच्चा अच्छा लग रहा है, ना अपना आप अच्छा लग रहा है, तो कोई जब ये कहते हैं ना कि तुम्हें तो strong होना चाहिए, तुम्हें तो grateful होना चाहिए, तो honestly हमें वो बंदा बहुत बुरा लगता है, because आप उस वक्त एक इस किस्म के foyer में होते हैं जहाँ पे आपको ये forgiveness, gratefulness और gratitude ये चीजें नहीं समझ में आ रही होती, क्योंकि वो पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे आपको एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, which is called support. And the support is not something which comes in isolation to one thing and another. वहाँ पे जैसे उज़मा ने बात की कि आपको डीप ब्रीथिंग की जरूरत है, वो ब्रेथ की बात करी थी, मैं डीप ब्रीथिंग की बात कर रही हूँ, बिकॉज आई थिंक कि वो बहुत आसान है डीप ब्रीथिंग को सीखना और करना, और कोई भी उसको गूगल करेगा जो हमें सुन रहा है उसको 5 मिनट में समझ आ जाएगा कि डीप ब्रीथिंग कैसे करते हैं, और उसके फायदे क्या है वो उसे समझ आएंगे जो करके देखेगा, ठीक है. क्योंकि अगर आप देखें आजकल जितनी भी लेटेस्ट हमारे पास ये आईफोन की वॉचेस और ये सब कुछ आए होती हैं, स्मार्ट वॉचेस, उसमें उन्होंने एक फंक्शन डाला होता है कि अगर आपकी स्ट्रेस्ड ब्रेथ है तो आप 3 टाइम्स जो है डीप ब्रीथिंग करें तो इट रिड्यूसेस, और वो आपको खुद ही कैलकुलेट करके देते, इट एक्चुअली हेल्प्स. तो वो डीप ब्रीथिंग आपके लिए एक सपोर्ट हो सकती है, वो फूड्स आपके लिए एक सपोर्ट हो सकते हैं. वो आपके पास जैसे फूड में मैं जैसे आसमा बात करी थी, तो मैं 2-3 चीजें क्विकली लोगों को बताऊंगी जो पोस्टमार्टम में बहुत हेल्प करती हैं. आपको एप्पल, कैरेट, चीज, पीनट बटर, ये डायरेक्ट सोर्सेज जो फौरन आपके लिए इस तरह ही काम करते हैं जैसे SSRI काम करते हैं. तो आपको ये चीजें जरूर लेनी चाहिए पोस्टमार्टम में, क्योंकि ये वो क्विकली राइट अवे चीजें ना हमारे इर्द गिर्द हमें अवेलेबल होती हैं. तो फिर हम आ जाते हैं अपनी इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरफ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द वेलबींग ऑफ अ मदर. हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, जहाँ से स्टेम होती है वो ये है कि हम में से बहुत सारे लोग पेरेंट्स ही उस वक्त बन जाते हैं जब प्लान ही नहीं किया होता बनना. वही जो बात अभी डॉक्टर उज़मा कह रही थी कि हमारी डेस्टिनी है कि शादी करना है और बच्चे पैदा होने. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम ऑल्सो बीइंग मैरिड फॉर 20 years एंड आई हैव 19 years old son. और उसने मुझे कुछ 6 महीने पहले ये बात कही कि अम्मा आप जब मदर बनी ना तो आपको पता नहीं था कि आपको बच्चे चाहिए या नहीं. सो आई थॉट अबाउट दिस स्टेटमेंट फॉर मेनी डेज एंड आई केम टू द पॉइंट दैट ही इज राइट, क्योंकि मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे बच्चे चाहिए या नहीं, मुझे ये पता था कि मुझे तो यही करना है, ठीक है. Besides that I was studying, I was doing my PhD, I was doing my many things related to career. But that was something which was very important to me as a career goal. जैसे होता ना, इसी तरह ये मेरा भी एक लाइफ गोल था कि मुझे जरूर जो है वो, अच्छा ये 4 महीने हो गए, अब जरूर हमें प्लान करना चाहिए कि बच्चे होने चाहिए. So I mean, many of us, without thinking that at what point of the time we should going to have a child, हम बस उसमें घुस जाते हैं. And माँ बनना या पेरेंट बनना is not something जो कि आप बगैर प्लानिंग के करें. तो एक तो मेरी एडवाइस ये है कि प्लीज डू प्लान, वट एवर द नंबर यू प्लान, आपने 3, 4, 5 जो भी करने हैं आप सोच के करें, क्योंकि हर एक के अपने रिसोर्सेज हैं, हर एक के अपने लाइफ में उसके अप्स एंड डाउन्स हैं. तो जहां पर जो चीज आपको करनी है वो आपने खुद उसको प्लान करके करना है. हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है,
अगर कोई कपल जो है वो जरा करियर ओरिएंटेड है, वो 2 साल या 3 साल फैमिली नहीं प्लान करना चाहता, तो हमारे यहाँ लोग उसको कितना स्टिग्मेटाइज कर देते हैं। इवन कोई शादी थोड़ी लेट करना चाहता है, उसको लोग कह देते हैं ये तो ठीक नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है हमारे यहाँ। तो बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग जो मैंने देखा है, जो यंग मदर्स हैं, जो बहुत अर्ली एज में जिनकी शादी हो जाती है, उनमें भी जो इसका इंसिडेंस और प्रेवलेंस है वो बहुत हाई है। ऑल्दो कि हमारे पास साइकोलॉजिकल सर्विसेज सीख करने के लिए बहुत कम परसेंटेज आती है, क्योंकि एक तो फॉर्मली जो डायग्नोसिस है वो बहुत कम परसेंटेज का होता है, और तकरीबन समझ लें कि लेस देन 15% जो है वो आपके पास केसेस आते हैं जो कि रिपोर्ट होकर आते हैं, और वो किसी भी तरह आपके पास जो हमारी गवर्नमेंट के साइकेट्री डिपार्टमेंट्स हैं, जिना है, म्यो है, या और हमारे हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ से जो आते हैं वो बहुत कम परसेंटेज में हमारे पास जो है ना वो डायग्नोस केसेस पहुंचते हैं, क्योंकि मोस्टली तो लोग हेल्प के लिए जाते ही नहीं है, वो हेल्प सीख करने के लिए नहीं आते। तो वो जो थोड़े बहुत केसेस हमारे पास आते हैं उसमें हम मोस्टली उनको यही रिकमेंड करते हैं कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लें इससे निकलने के लिए, क्योंकि जाहिर बात है पहला एक गिल्ट होता है कि आई एम नॉट अ गुड पेरेंट, फिर एक ये गिल्ट होता है कि मेरी कोई गलती थी, शायद मैंने कुछ गलत किया तो ये हो गया। आई मीन ये कॉमन जो हमारे यहाँ एक मिडिल लिटरेसी के साथ, एक एवरेज लिटरेसी के साथ लोग गवर्नमेंट के सेक्टर में ज्यादा आते हैं, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन ज्यादा उसी सेक्टर के साथ रहा है। तो वहां पे मैंने यही देखा कि सबसे पहले वो अपने ऊपर लिखती है कि कुछ हमने गलत किया है तो ये हुआ, और हम शायद एक अच्छी माँ नहीं है, और ये वाली चीजें, क्योंकि पता है पहले तो 1 से 3 हफ्ते के बाद ही शुरू होता है ना, उससे पहले तो नहीं ये इसके सिम्टम्स पता लगने शुरू होते। तो मैं जनरली जो चीजें रिकमेंड करती हूँ वो मैं कहती हूँ कि आप अदर देन जाहिर है जब साइकियाट्रिस्ट उनको कोई मेडिकेशन शुरू करवाते हैं, जो फर्स्ट स्टेप पे हम रिकमेंड करते हैं आप थोड़ा बहुत अपना एक्टिविटी लेवल रेज करें, क्योंकि वो जो एक्टिविटी या एक्सरसाइज है ना वो फॉर्मल नहीं भी कर सकती मदर्स फॉरी, लेकिन थोड़ी बहुत वॉक या इस तरह। और मैं एक एडवाइस करती हूँ कि जब आप वॉक करें तो फाइंड अ गुड पार्टनर फॉर योरसेल्फ, जो भी बंदा आपको अच्छा लगता है आसान लफ्जों में उसके साथ वॉक करें, क्योंकि वो आपको एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है। अब वो अच्छा कोई हस्बैंड नहीं लग रहा उस वक्त अच्छा, अक्सर इस कंडीशन में ये भी लड़कियां कंप्लेन लेकर आती हैं, चलो अपनी अम्मी के साथ कर लो, बहन के साथ कर लो, दोस्त के साथ कर लो, जो आपको अच्छा लगता है उसके साथ वॉक करो, तो वो कुछ थोड़ी सी आपको अच्छी फीलिंग्स जो है उससे आएंगी। फिर डाइट की भी ऑल एज अ ग्रुप कंसोर्शियम हम अग्री कर रहे हैं कि दैट फूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन एक चीज जो मैं समझती हूँ दैट वंस डेफिनेटली नीड टू क्रिएट सम टाइम फॉर देमसेल्व्स, वो हम नहीं करते, वो हम अपनी जनरल लाइफ में भी नहीं करते थे। कि हम सब जो मदर्स बैठी हैं या जितनी भी यहाँ सुन रही हैं, प्रायोरिटाइज हम किसको करते हैं? वी ऑलवेज प्रायोरिटाइज अवर चिल्ड्रन। हमारी प्रायोरिटी हमारे बच्चे होते हैं, और हम अपनी लाइफ को जो प्लान करते हैं, अपने करियर को जो प्लान करते हैं, अपनी जो पर्सनल हमारे गोल्स होते हैं उनको भी जब हम सेट कर रहे होते हैं, वो भी हम अपने बच्चों को देख के कर रहे होते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम बहुत सारे हैट्स जो सर पे रखे हैं, बहुत सारे रोल्स जो सर पे रखे हैं, उसमें अपने आप को तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। और एक जिस वक्त आप वर्नरेबल होते हैं टुवर्ड्स डिप्रेशन, तो ये चीज और भी ज्यादा काउंट करती है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर बहुत जरूरत है उन सब मदर्स को कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें और वो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें। फिर हाँ, फूड में एक चीज मैं और कहना चाह रही थी कि जो फिश ऑयल है ना, ये भी बहुत हेल्प करता है। जैसे सी फूड में बहुत होता है, सप्लीमेंट्स भी बहुत कॉमन मिल जाते हैं। हमारे तो बचपन में हमारी अम्मी वो कॉड लिवर फिश ऑयल के कैप्सूल्स हमारी जनरेशन के सब माँ बाप खिलाते थे अपने बच्चों को। आई एम श्योर आप लोगों ने भी खाए होंगे जो जो मेरे एज ग्रुप के हैं। तो हम लोगों को तो वो बहुत खिलाए जाते थे, वो ऑयल के चम्मच भी स्पून भी भर भर के पिलाए जाते थे कि ये कॉड लिवर ऑयल बहुत अच्छी चीज है, वो भी एक बहुत अच्छा। और फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग है इट्सेल्फ ये भी बहुत हेल्प करती है पोस्टमार्टम डिप्रेशन को रिड्यूस करने में। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उसमें आपका दिल नहीं चाह रहा होता और एक फीलिंग नहीं आ रही होती टुवर्ड्स दिस कंडीशन, तो उसमें वो भी एक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि अक्सर पोस्टमार्टम में मदर्स जो है वो अपने बच्चों को फीड भी नहीं कराती। तो वो किसी तरह थोड़ी सी अगर एफर्ट करके ये भी करें तो ये भी एक तरह से काइंड ऑफ थेरेपी जो है वो ही हो जाती है। लास्ट चीज जो मैं इस सिनेरियो में कहना चाहूंगी वो ये कि चाहे वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है या वो इन जनरल डिप्रेशन है, आइसोलेशन को रेजिस्ट करना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा एक इंडिविजुअल अकेला बैठा रहता है उसको उतनी ज्यादा थॉट्स आती हैं, उसको उतनी ज्यादा वही बातें, वही फ्लैशबैक, वही मेमोरीज, स्पेशली पोस्टमार्टम में। बिकॉज वन ऑफ माई वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड हैज गॉन थ्रू पोस्टमार्टम, और वो मेरी इतनी क्लोज फ्रेंड थी कि मैं मतलब उसकी और मेरी लाइफ के बहुत सारे इंसिडेंट्स सेम थे, एक्सेप्ट आई हैवंट एक्सपीरियंस पोस्टमार्टम। तो मुझे हैरत होती थी ये नहीं हमने किया, क्योंकि उसकी बहुत प्रोलॉन्ग जो थी वो लेबर थी, लाइक
फॉर 3 days, और उसके बाद उसकी जो है वो उन्होंने उसको जो था वो सी सेक्शन उसको रिकमेंड किया और उसका सी सेक्शन किया। तो वो जो लेबर की पेन और सी सेक्शन की पेन थी ना, वो उसके लिए एक ऐसा ट्रॉमा बनी कि उससे वो उसने अपने आप को संभाल ही नहीं पाई। तो बाज़ औक़ात वो जो ये फेज होता है ना पूरा का, उसमें भी ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो लोगों को इस तरह की चीज की तरफ जो है वो ले जाते हैं। सो बहरहाल ये कि सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी तो लोगों में अंडरस्टैंड स्पाउस जहाँ पे थोड़े अच्छे शुरू हो गए, otherwise by and large honestly still people don't understand that what kind of state it is और इसमें हमें किस तरीके से लोगों की हेल्प करनी चाहिए। अभी मैं WHO के साथ उनकी कोविड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के ऊपर काम कर रही थी। आई वाज वन ऑफ द 3 पीपल अक्रॉस द ग्लोब जो उस पर काम कर रहे थे। वो हमारी भी के जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ फिजिकल सिम्टम है कि आप पेशेंट्स कहते हैं हमें भूख ही नहीं लगती, या वो उनको डिप्रेशन इतना हो रहा था कि वो इतना इनटेक कर रहे होते हैं कि दे आर गेनिंग देयर वेट। तो ये 4-5 तो बहुत कॉमन है, ये हेडेक, लेजीनेस, वेट चेंज, एपेटाइट का चेंज होना, देन लैक ऑफ इंटरेस्ट। इवन आपकी अपनी फैमिली में आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, वो कहती है हमारा दिल नहीं करता कि हम अपने बच्चों को देखें, या हमारा दिल नहीं करता, या इवन जो आपका रूटीन होता है ना, डेली रूटीन, वो आपको उसको आप एंजॉय नहीं करते, वो आपको बर्डन लगने लगता है। तो ये कुछ ऐसे फिजिकल साइंस होते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि दिस लेडी इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग एंड शी नीड्स योर सपोर्ट। तो मैं यही समझती हूँ कि मदरहुड बहुत खूबसूरत फेज है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ गुजारें तो यू कैन डू एनीथिंग। मैं भी मदर हूँ ऑफ 3 किड्स हूँ, एंड आई कैन एंजॉय माई प्रोफेशन एज वेल। एंड बिकॉज आप थोड़ा सा, मुझे भी चैलेंजेस आए हैं, मैं समझती हूँ आए हैं, बट आप उसको ऑर्गेनाइज कर लें, आप सॉर्ट आउट करें कि क्या चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है, क्या चीज़ है जो आपको जो आप करना चाहती हैं वो आपको नहीं करना दे रही। और इसमें जाहिर है आपकी फैमिली सपोर्ट, आपके हस्बैंड की सपोर्ट, सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें किसी की भी हो, आपके घर में कोई है, अगर आपको लगता है कि वो इन सारी फिजिकल साइंस से गुजर रही है, 4-5 चीजें जो मैं कॉमनली देखती हूँ, इसके अलावा और भी चीजें हैं, लेकिन 5 ये बहुत कॉमन है। ये खासतौर पे एपिटाइट का, नींद स्लीप इश्यूज बहुत ज्यादा कॉमन है कि नींद नहीं आती, हम लेट जाते हैं, हमें नींद नहीं आती बिल्कुल, और जब हम सुबह उठते हैं तो वी आर नॉट एक्टिव। जाहिर है आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई। तो अगर आपको कोई मदर, कोई खातून आपको कंप्लेन कर रही है, तो उसको सपोर्ट करें, उसको हेल्प आउट करें प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए, तो डेफिनेटली इट विल चेंज द लाइफ। और मैं ये समझती हूँ कि जो फिजिकली और मेंटली स्टेबल और एक्टिव खातून होगी ना, वो एक फिजिकली और मेंटली स्टेबल जनरेशन को जो है ना वो मैं समझती हूँ पैदा कर सकती है और उसको बड़ा कर सकती है। जो एक खुद सिक लेडी है, वो कैसे अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती है। सो मदर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी जनरेशन। Absolutely. So Uzma, abhi Faiza was talking about balance, and balance एक बड़ा buzzword है. Like everybody talks about try and maintain balance, like work life balance की बात होती है, a balance between a mother and yourself, like where सब कुछ you were I know that you were raising your hand, so you wanted to say something, so please, the floor is yours. Tell us. We were talking about nutrition and wellness. थैंक यू वेरी मच आयशा। मैं थोड़ा सा खवातीन के साथ माजरत के साथ कि इसमें थोड़ा सा कसूर ना हमारा अपना भी है, क्योंकि अब आप देखिए न्यू भी मदर्स होते हैं, मैंने खुद यही किया है। मेरी पूरी तवज्जो मेरी बेबी की तरफ नहीं थी, मेरे एक हाथ में मोबाइल होता था, ठीक है, एंड आई वाज ब्रेस्ट फीडिंग, या फिर आई जस्ट गेव हर टू माय मदर और वो बॉटल फीड करती थी, ठीक है। तो आप देखो ना, ये जो हैप्पी हार्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन है, एंड्रोफिन है। ऑक्सीटोसिन आपका टचिंग से और ब्रेस्ट फीड से भी रिलीज होता है, जो कि आपको रिलैक्स करता है, ठीक है। और एंड्रोफिन क्या है? लाफ्टर एक्सरसाइज। और मेरी मामा हमेशा ये कहती थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था, ऑफिस से थके हुए आओ तो आपके पास नहीं हटती, वो ये कहती है, अस्मा तुम इनकी देखो तो ये कर क्या रही है, तुम मोबाइल में किसी और लैपटॉप में देख रही हो, तुम देखो तो ये कर क्या रही है, इतना मुझे हंसाती है, मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया, मुझे एक्टिव रखती है। तो थोड़ा सा अगर आप अपने बच्चों को भी तवज्जो दें, मोबाइल खत्म कर दें प्लीज। अगर आप अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, तो पूरा 100% उसको जो है वो आप टाइम दें, नो मोबाइल। तो और दूसरी बात ये है कि जो सोसाइटी है ना, वो वाकई बहुत बेरहम है, इंक्लूडिंग और मदर्स टू। अच्छा, व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, ये नहीं खाना, ये ठंडा है, ये नहीं खाना, ये गर्म है।
अच्छा अब ब्रेस्ट फीड पे आओ यार, फीडर ना रात को जरूर फीडर पिलाना, फिर तुमको मुश्किल होगी। अच्छा दूसरी तरफ ये तो तुम्हारा दूध ही थोड़ा आ रहा है, तुमने जरूर माश की दाल खा ली होगी या चने की दाल खा ली होगी, देखा इसका पेट लूज हो जाए। प्लीज सब कुछ खाएं और लेट हर लिव एंड लिव योरसेल्फ आल्सो। आप सब कुछ खा सकते हैं, कोई चीज भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सब कुछ लें, थोड़ा थोड़ा लें, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, और जब आप कोई एक काम कर रहे हैं ना उसको 100% दें। I just wanted to add that. Yeah, no, I think that's great. Totally. And Asma, what are the 3 foods that every woman must add in her diet to, stay happy? Like they say, we all know about the happy hormones. Are there any happy foods? अच्छा हैप्पी फूड्स जो है ना, ज्यादातर हमारा जो वो जंक फूड और जो है वो शुगर की तरफ जाता है, शुगरी फूड्स हैं। और लेकिन बिलीव यू मी, अगर आप अपनी डाइट में एक तो आप ऐड करें कैल्शियम रिच फूड्स, जो कि आपको मिल्क से मिलता ही मिलता है, ठीक है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। सेकेंडली नट्स ऐड करें। नट्स जो है ना वो डायरेक्ट आपका ब्रेन फूड है, उसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स भी होंगे, उसमें आपको आयरन भी मिलता है, जिससे आपका जो ब्लड सर्कुलेट होता है। आप देखिए जब आप एनेमिक होते हैं, आप में आयरन जो है वो लो होती है, तो ऑटोमेटिकली आपसे कोई काम नहीं होता, आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है एंड यू फील टायर्ड एंड यू गो टू डिप्रेशन। तो आपने नट्स जरूर ऐड करने हैं। थर्डली क्या है कि जितना आप रॉ फूड लें, अनप्रोसेस्ड फूड लें, नेचुरल फूड लें, वो आपके लिए बेस्ट होगा। और ये तो रिसर्च है कि आप जंक फूड लेते हो आप डिप्रेशन में जाओगे। और प्लस अब ये भी रिसर्च है, अगर एक मदर जंक फूड ले रही है, इट ऑल्सो इफेक्ट ऑन द डीएनए, वो डीएनए को भी अल्टर करते हैं, और आगे जो है वो आप क्रोनिक डिजीजेस की तरफ भी जाते हो, आपके बेबीज में भी वो इंप्लीमेंट होता जाता है। Wow, yeah. So dietary changes have long lasting effects. And I wanted to add some things to what we were Sure. talking about. Yeah. हैं दोनों ही equally important. इसी के भी links हैं. We also spoke about immunity. So what are some common physical mistakes that women are making, which if they correct them, automatically उनकी well-being बढ़ जाएगी? बिल्कुल, मैं अभी सबकी डिस्कशन सुन रही थी, उसमें यही है कि हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं ना, इन सारे जो फिजिकल साइंस आपने मुझसे पहले पूछा, हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो देखें जो हम सबसे बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, अब हमें अगर पता चल रहा है कि हमारे बाल गिरना स्टार्ट हो गए, या हमें पता चल रहा है कि हमारे बाल की वाइटनिंग स्टार्ट हो गई है, या हमें लग रहा है कि हम थोड़ा सा काम करते हैं, हमारी वी आर फेसिंग पेन इश्यूज। बड़ा कॉमन होता है कि वो खवातीन कहती हैं कि पूरी बॉडी में दर्द रहता है सारा दिन। जब हम सुबह उठते हैं थोड़ा बेहतर होते हैं, बट विद टाइम पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अब हमें पता चल रहा है कि देयर इज सम डेफिशिएंसी, और मोस्ट कॉमन आपको पता है कैल्शियम एंड विटामिन डी, दे आर वेरी वाइटल विटामिन्स फॉर अस। तो जब आपको ये चीजें पता चल रही हैं, और अब तो देखिए सोशल मीडिया का दौर है, हमारा एक्सेस है बहुत जगह पे, खुद भी हमें ना जरूरी नहीं होता कि हम डॉक्टर ही हों या हम कोई टीचर ही हों, आप चीजों को, सिम्टम्स को समझ सकते हैं कि ये चीजें मुझे हो रही हैं, तो दे मे बी रिलेट टू दिस थिंग, they may be related to this deficiency. तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको ये symptoms आ रहे हैं तो definitely there is some vitamin deficiency. Either go to some professional help, आप जाएं वहाँ से help out लें। आपको अगर जैसे हमने बाकी चीज़ों की कि आपको बहुत लोग फीमेल्स आती हैं, उनका कॉमन कंप्लेन होता है पेल्पिटेशंस हो रही हैं बहुत ज़्यादा, बहुत दिल धड़क रहा है डॉक्टर साहिबा, मैं लेटती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मेरे कानों में ना मेरे दिल के धड़कने की आवाज़ आ रही है। ये बड़ा टिपिकल एक जुमला है। और या उनका होता है कि हमें सांस चढ़ रहा है बहुत ज्यादा। तो ये दोनों निशानी है कि भाई यू आर एनीमिक, आपका डेफिनेटली हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम है। अच्छा हमारे यहाँ पे ये है कि देखिए वंस आपने चाइल्ड अपनी बेबी को डिलीवर कर दिया, उसके बाद हम ना अपना ये फॉलो अप नहीं करवाते कि अब हमारा जो है हीमोग्लोबिन किस लेवल पे है। माइट भी हम अब एनीमिक हो गए हों, और हमें गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्ट करती हैं कि आपने ये विटामिन कंटिन्यू करनी है। बट इनिशियल जो 15-20 दिन होते हैं जब आपके वो या 40 डेज जो हम लोग कंसिडर करते हैं, उसके बाद वो सारी जो केयर एक फीमेल की थोड़ी बहुत चल भी रही होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये साइंस नजर आ रहे हैं कि आपको सांस चढ़ रहा है, आपको पेल्पिटेशंस फील हो रही है, उसको निग्लेक्ट ना करें, ये मिस्टेक ना करें उसको निग्लेक्ट करने की। डेफिनेटली यू आर एनीमिक, यू नीड सम हेल्प, यू नीड सम आयरन सप्लीमेंट्स। आपको अगर अपनी हड्डियों में दर्द फील हो रहा है और आपको कुछ हेयर लॉस बहुत कॉमन है, आपने भी देखा होगा कि हेयर लॉस की बहुत कॉमन कंप्लेन होती है और स्पेशली ये पोस्टपार्टम पीरियड में, उसके बाद भी
तो आप देखें आपकी जिंक डेफिशिएंसी तो नहीं है, आपको कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं है, और थोड़ा प्रोटीन। सा एग्जैक्टली प्रोटीन्स तो ज़ाहिर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इस तरह के साइंस है जो हमें इन चीज़ों का बताते हैं। फिर दूसरा ये कि हमारी जो डाइट होती है ना, मतलब मैं खुद भी अपने आप को इसका मैं पार्ट में बताती हूँ आपको, कि हम लोग ना जो खा रहे होते हैं ना वो हेल्दी ही नहीं होता। कि मतलब कुछ भी अगर किसी बच्चे ने बचाया वो थोड़ा सा हमने वो खा लिया और हम कहते हैं जी हमारा मील हो गया। ब्रेकफास्ट तो मैंने बहुत ही कम खवातीन देखी हैं जो ब्रेकफास्ट भी करती हैं, और ब्रेकफास्ट में पता है किसकी, और इवन मैं एज ए डॉक्टर मैं स्किप करती रही हूँ, और अपने उन फेजेस में मैं स्किप करती रही हूँ, जबकि ब्रेकफास्ट ही जो है वो आपको जो है ना वो इनिशियल आपको एनर्जी देता है टू स्पेंड योर डे, और वो बड़ा सही वाला ब्रेकफास्ट होना चाहिए जिसमें आपको प्रोटीन होना चाहिए। यू शुड हैव सम एग, यू हैव सम मिल्क। और हम यहाँ पे अगर ब्रेकफास्ट करते हैं तो 1 कप ऑफ टी ले लेते हैं, और हमें ऑफिस जाने की भी थोड़ी जल्दी होती है, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना होता है। तो ये इसमें बैलेंस डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप ऐसी चीजें लें जो आपकी सारी पार्ट्स ऑफ योर कैलोरीज को, कि वो आपको प्रोटीन चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आपको विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, उसको कवर करें। और अपना मील सोचें कि आपने सारे दिन में क्या खाया है। मिल्क को जरूर पार्ट ऑफ योर मील बनाएं। अगर आप 2 कप चाय ले रहे हैं तो 1 कप ऑफ टी को स्किप करके आप उसको मिल्क से रिप्लेस कर लें। आप प्रोटीन जरूर लें और हेल्दी मील्स लें। और ब्रेकफास्ट मेरा मैसेज है बिल्कुल मिस ना करें, बिकॉज ब्रेकफास्ट जो है ना, मैंने बहुत कम खवातीन को देखा है जो प्रॉपर ब्रेकफास्ट करती है। मतलब मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि वो ऐसा टाइम होता है सुबह का ना कि हमें बस ये फिक्र होती है कि हमने बच्चों को नाश्ता देना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, हमने खुद भी ऑफिस जाना होता है, लेकिन वो हम उसको कंसिडर ही नहीं करते कि ये भी एक इम्पोर्टेंट है। या जाते जाते गाड़ी में हम कुछ कोई छोटा सा एक ब्रेड का पीस ले लिया, उसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो कि हम खुद अपने लिए एहतमाम करते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको हिंट्स मिल रहे होते हैं और हम उनको इग्नोर करके गलती करते हैं, क्योंकि इनिशियली तो जब हम लोग यंग होते हैं चीजों से गुजर जाते हैं, बट आफ्टर 35 इवन अब देखिए हमारी एज लिमिट बहुत कम होती जा रही है, कि पहले 40-45 तक ना आप जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, दे मैं समझती हूँ दे आर वेरी हेल्दी एज कम्पेयर। मैं अगर अपनी मदर से या अपनी ग्रैंड मदर से अपने आप को कंपेयर करूँ तो दे आर वेरी हेल्दी, क्योंकि जो उनका डाइट प्लान होता था ना वो बड़ा अच्छा होता था। हमारा डाइट प्लान क्या होता है कि वी आर ईटिंग जंक्स। हम अगर बाहर से हम टाइम नहीं होता बर्गर ले लिया, हमने बाहर से कुछ प्यास लग रही है, हमने कोई फिजी ड्रिंक पकड़ लिया, तो दे आर जस्ट हम शुगर ले रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम अब 30-35 तक तो हम गुजारा कर लेते हैं, बट आफ्टर दैट वी आर फेसिंग द इश्यूज जो हमारे मतलब ग्रैंड पेरेंट्स को जो अब हो रहा है ना, जैसे बैकएक इज अ वेरी कॉमन बैकएक इज वेरी कॉमन नाउअडेज इन यंग गर्ल्स, क्योंकि हमारे अंदर कैल्शियम और विटामिन है ही नहीं। आप किसी का कैल्शियम विटामिन डी चेक करवा लें, बहुत ही कम कोई होगा कि जिसका आपको लगे कि वो शायद मतलब मैं तो जिसका भी विटामिन डी कराती हूँ बिलो मतलब 20 मतलब इनसफिशिएंट से भी वो नीचे होता है, डेफिशिएंट से भी नीचे होता है। अच्छा, तो एक चीज ये फायजा, बड़ी आपकी misconception है। बात बिल्कुल ठीक है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे आपके पास भी आए होंगे केसेस के हम लोग समझते हैं कि जो देसी घी है ना वो कोई मैजिक फूड है, जी जी और वो एग्जैक्ट मतलब कि जब आपके डिलीवरी डेट ना उससे भी पहले भी लोग कहते हैं दूध में मिला के पी लो तो डिलीवरी आसान हो जाएगी। स्पेशली एग्जैक्टली और बिल्कुल आफ्टर आफ्टर दैट आपको सवैयों के ऊपर डाल के खिला रहे हैं देसी घी दूध में मिला के। ठीक है, देसी घी इज नेचुरल, मगर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो आपने बैलेंस रखना है, वो कोई मैजिक फूड है कि आप पिएंगे तो बस आप ताकतवर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जितना उसको जरा गेन सा कर थोड़ा लेते सा हैं तो ना उसको भी रिड्यूस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो अपने आप को बिल्कुल अपने लाइफ में वापस आना इज वेरी टफ। आप देखें कि कितनी मतलब लेडीज हैं वो मतलब अपने डबल ट्रिपल हो जाती हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड ना, अपने जो उनका वेट इतना गेन हो जाता है, ऐसा और ही है, फिर उसके ऐसा ही बाद है। उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो रिलेटेड टू ये ओबेसिटी होती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मैं बड़ी यंग अब लड़कियों को देखा है, दे हैव हाइपरटेंशन, दे हैव डायबिटीज। बाल जो है हमने अपने मुंह के जरिए बाहर निकाल। न्यूट्रिशनिस्ट साइकोलॉजिस्ट इसीलिए ही हैं कि कि आपकी हेल्प कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि हमें पे हेल्प ले लेंगे तो वो चीज वहां खत्म हो जाएगी। Come to Uzma Ramzan, who is going to teach all of us how to breathe well, and hopefully the breathing that she teaches us right now will also help all of us have like a restful sleep. So, बिल्कुल। yes, थोड़ा सा and उसके it अंदर मैं ऐड alleviates करूँ। some stress that we're all जी going यस श्योर बिल्कुल। थोड़ा सा सबके लिए मैसेज जो मैं अंदर ऐड करूंगी सारी माओं के लिए, जैसा सब लोगों ने बात करी कि सेल्फ लव
इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारी घुट्टी में डाला होता है। हमारी कंडीशनिंग इस तरह की होती है कि सेल्फ लव जो है वो बड़ा सेल्फिश है। इट्स नॉट सेल्फिश, इट्स सेल्फ केयर। अगर आप अपना ख्याल रखोगे तो आप किसी और का ख्याल रखने के काबिल होगे। और हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी एनर्जी को पिक करते हैं। Our children will become who we are, not what we say. To be you want them to be. तो माओं के लिए पीसफुल होना, माओं के लिए अपनी एनर्जी पे काम करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स डू सम पावर ब्रेथ, ठीक है? तो उसके लिए सब लोग सीधे होके बैठ जाए, बैक स्ट्रेट, स्पाइन इरेक्ट, शोल्डर रिलैक्स। आपके हाथ जो है पाम फेसिंग अपवर्ड ऑन योर नीज, ठीक है? कमर बिल्कुल सीधी। अच्छा, हम लोग करेंगे कैसे कि हम ब्रीद इन करेंगे नाक के जरिए, ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज एंड देन वी विल होल्ड आवर ब्रेथ, होल्ड 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 एंड देन ब्रीद आउट फ्रॉम आवर माउथ विद द हार्श साउंड, ठीक है? और सोचना क्या है? सोचना हमने ये है कि खुदा का नूर हमारे अंदर जा रहा है, वो हमारे माइंड को वॉश कर रहा है, वॉश कर रहा है, वॉश कर रहा है। एंड देन ब्रीद आउट सारा गन, सारे खौफ, सारी तकलीफें, सारे सवाल जो है हमने अपने मुंह के जरिए बाहर निकाल दिए, ठीक है? कि खुदा का नूर अंदर जा रहा है, वो हमारे माइंड को वॉश कर रहा है और फिर मुंह के जरिए सब कुछ बाहर निकाल रहा है। तो क्लोज योर आईज, बैक स्ट्रेट, palm facing upward on your knees, आंखें बंद, एक लंबा गहरा सांस लेंगे, पहले नॉर्मल and then breathe out. And now power breath. Breathe in from your nose. Hold the breath in your mind. Hold, 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 and breathe out from your mouth with the ha sound. आंखें बंद. Breathe in from your nose. Hold the breath. Hold, 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 and breathe out from your mouth. Breathe in from your nose. Hold the breath. Hold, 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 and very, very slowly breathe out from your mouth. एक और लंबा गहरा सांस. Hold the breath. Hold, 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 and breathe out. बहुत आहिस्ते के साथ आंखें खोल लें. कुछ ऐसा आप सही तरह से कह रही थी, आप बताओ आपको कुछ फर्क लगा? हाँ, वाकई दुनिया चेंज हो गई है। नहीं, एकदम से थोड़ा सा आपका जो रिलैक्स माइंड हो है, एकदम थोड़ा से सा रिलैक्स रिलैक्स हो हो जाता है. हाँ, बिल्कुल. और आजकल हर कोई कहता है ना कि सेल्फ कनेक्ट विद योर सेल्फ. हम लोग हर कोई ये सुन रहे होते हैं ना कि जस्ट कनेक्ट विद योर सेल्फ एंड बी योर सेल्फ. तो ये हेलो. सो अब यहाँ पे मैं सबको, अगर हमारे पास टाइम है आयशा, 2 मिनट है. ओके. सो व्हाट इज सेल्फ? हर कोई, हम लोग सुन रहे हैं आजकल कि कनेक्ट विद योर सेल्फ और ये वो. व्हाट इज सेल्फ? सेल्फ इज दैट टोटल कॉन्शियसनेस. अगर आप अपनी कोई 15 साल पुरानी तस्वीर निकाल के देखें तो हम देखेंगे कि हमारी शक्ल बदल गई, हमारी फीलिंग्स बदल गई, हमारे ख्याल बदल गए, हमारे इमोशंस बदल गए, हमारी बॉडी बदल गई, बट देयर इज समथिंग जो कि वैसे का वैसा ही है. सो सेल्फ इज दैट कॉन्शियसनेस विच इज डेथलेस, टाइमलेस, एजलेस. और डिफरेंट एडिशन इसको डिफरेंट नाम दिए. कोई इसे गॉड कहता है, कोई इसे स्पिरिट कहता है, कोई इसे रूह कहता है, कोई इसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहता है, कोई इसे जात कहता है. इकबाल ने इसके बारे में बहुत लिखा है, जात. वो जादिया में इशफाक अहमद फरमाते हैं कि मैंने बाबा से पूछा, वो ऐसे बाबा वो लोग आपकी हमारी तरह के होते हैं लेकिन खुदा के बहुत करीब होते हैं. तो कहते हैं मैंने बाबा से पूछा कि मोमिन कौन है? तो बाबा ने कहा जिसका दिल माजी की याद में नहीं मुब्तला और जो मुस्तकबिल से खौफज़दा नहीं, यानी कि उसका ताल्लुक हाल से है. यानी कि अक्सर ये एक टर्म सुनी होगी कि वो बुजुर्ग बड़े साहिब हाल हैं.
यानी कि उनका हाल से ताल्लुक है। तो वही जो आपने भी ऐसा बात करी कि गिव योर 100%, हाल वही होता है ना, आप तभी हाल में होते हैं जब यू आर गिविंग योर 100%। और जो पुराने जमाने में डिप्रेशन नहीं होता था और आजकल के जमाने में डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, वो सिर्फ इसीलिए कि पहले हर कोई हर 100% देता था जो वो कर रहा होता था। अब वो जमाना नहीं है। आजकल की बच्चियों के लिए बहुत मुश्किल है बच्चों का सारा सब कुछ देखना। एक तो इंस्टाग्राम ही आप देख लो कि हर किसी को आप पिक्चर परफेक्ट देखते हो और अपने आप को बिहाइंड द कैमरा देखते हो, तो कॉन्शियसली आपके माइंड के अंदर वो चीज बिल्डअप हो रही होती है। तो किसी भी चीज को 100% देते हैं जब हम लोग, तो हम खुली आंखों के साथ ही मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड के अंदर आ जाते हैं। तो पुराने वक्तों के अंदर और आजकल के वक्त के अंदर ये भी बहुत ज्यादा फर्क है। तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है लाइफ का कि ग्रेटर योर कनेक्शन विद द सेल्फ, ग्रेटर योर कनेक्शन टू द परफेक्ट हेल्थ। That's So, so nice. over. Shara, that's a really, really nice thing to say. I had no idea that this was the definition of a moment, but it does make a lot of sense when you put it like this. So on that note, I think, Sharan, quiet for a second. On that note, I would like to thank all of you for joining us. It was such a fantastic discussion. I feel I've learned so much about, like being more mindful about breathing and eating and the company you're in and the stress you're putting on yourselves and trying to achieve balance. And so many of these topics that we don't discuss because we just generally believe that ammis and their well-being isn't important. Like somebody said ke ye notion hai कि भाई सदियों से बच्चे पैदा हो रहे हैं, अब भी हो जाएंगे. Why do we need to give it any more importance than it was given in the earlier times? So because of that notion,